Hi, good morning everyone. Today we are going to talk something about interpretation, which is different and unique for each one of us. Now, how this interpretation takes place in our mind. We are going to study interpretation. We are going to study how it can make changes in our life. Interpretation means that when we give meaning and significance to the events, to our experiences, to our knowledge, to whatever we see in front of us, towards the world around us, we assign certain meaning to it. That meaning depends on our unique cultural background, our emotions, our experiences, our personal experiences and personal state of mind. That the interpretation depends on all these. That is a drawing in an art gallery. Every one of us will perceive or will interpret the picture in different fashion. Some will feel saddened by seeing it. Some will feel nostalgic by seeing it. Some will feel happy, joyful by seeing that picture. It is the same art piece, but every one of us have assigned a different meaning or significance to that drawing. So this is what interpretation is all about. हम अपनी इंटरप्रिटेशन से 3 चीज़ों को जान सकते हैं. वो 3 चीज़ें क्या हैं? वो 3 चीज़ें हमारी शक्ति, अपने आप को पहचान सकते हैं, हमारी वैल्यूज़ और बिलीव्स कि जिसके दायरे में रहकर हम कोई भी काम करते हैं, और फिर अल्टीमेटली हमारा खुश होने का नज़रिया, तरीका, हमारी खुशी को हम अगले लेवल पर ले जा सकते हैं अगर हम अपने आप को जानेंगे और अगर हम अपने वैल्यूज़ और बिलीव्स को जान लेंगे. तो उसके लिए हमें अपनी इंटरप्रिटेशन को जानना सबसे पहले ज़रूरी है. मदर टेरेसा का नाम आप सबने सुना है. Mother Teresa was serving in a convent school and she was principal of the school. She was a very good, affluent and successful teacher. लेकिन उनका जब वो किसी गरीब को, किसी दुखी को, किसी कोढ़ी को देखती थी तब उनके दिल में दया जागती थी और वो सोचती थी कि मैं ये जो काम कर रही हूँ तो कोई और भी कर लेगा, लेकिन ये काम जो मुझे भाता है, मुझे अच्छा लगता है, तो ये काम मैं करना चाहती हूँ. इसी से मुझे सच्ची खुशी मिलेगी. इसी से मुझे अपने भगवान का रूप देखती हूँ मैं उन कोड़ियों में और भगवान मुझसे खुश होंगे. तो ये इंटरप्रिटेशन था उनका और उन्होंने अपने करियर को रोक दिया वहीं पर और अपने इस मिशन में लग गई. सेवा करने के लिए, कोड़ियों की सेवा करने के लिए, गरीबों की सेवा करने के लिए, दुखियों की सेवा करने के लिए, घायलों की सेवा करने के लिए. और उन्होंने बहुत बड़ा वर्ल्ड वाइड चैरिटी मिशन बनाया और जिसे करके वो बहुत ही प्रसन्नता और खुशी की हालत में रहती थी. ये हम सब जानते हैं. इसी प्रकार से अब हम इलॉन मस्क को भी लेते हैं, जो आजकल के कंटेम्प्रेरी हमारे बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर और सक्सेसफुल लीडर माना जाता है, जिनको we should expand consciousness such that we can ask better questions, learn more, expand beyond the solar system, ensure that life on Earth is good collectively for civilization, and then we can be less dumb about the nature of the universe. एक क्लाइमेट पर काम करना चाहते थे, सस्टेनेबिलिटी पर काम करना चाहते थे, उसके लिए इनोवेशन पर काम करना चाहते थे और इस नज़रिए ने उनको एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाया. उन्होंने स्पेस एक्स का कंपनी बनाई और उन्होंने क्लाइमेट चेंज के लिए एक कंपनी बनाई जिससे कि वो क्लाइमेट के ऊपर किस प्रकार का असर होता है उसके ऊपर काम करते हैं और स्पेस में एक्सप्लोर करने के लिए कंपनी को बनाया कि जिससे वो विभिन्न ग्रहों पर कैसे मनुष्य का रहन सहन या कैसे मनुष्य उन तक पहुंच सकता है, उन पर रह सकता है, उसको एक्सप्लोर करने के लिए उन्होंने बनाया. If you
accept as a proposition that we don't really understand the meaning of life and we wish to understand the meaning of life, then in order to understand the meaning of life, we should expand consciousness such that we can ask better questions, learn more, expand beyond the solar system, ensure that life on Earth is good collectively for civilization, and then we can be less dumb about the nature of the universe. He has changed his values and beliefs. He has he has known his capabilities and explored his capabilities to attain the maximum output from his capabilities. So this is what interpretation does in our life. एक सबसे बड़ी बात जो इंटरप्रिटेशन की है वो ये है कि जो व्यक्ति अपनी इंटरप्रिटेशन को जानने की कोशिश करता है सेल्फ रिफ्लेक्शन से, तो वो व्यक्ति अपने विकास के लिए आयाम चुनेगा, रास्ते चुनेगा तर्क से, ताकि उसका मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास, स्वास्थ्य का विकास जिस राह से हो सके वो उस राह को अपनाता है और उस राह को ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास करता रहता है। सच्चाई पर पहुंच जाता है कि जो उसकी कॉलिंग है या जो लक्ष्य उसको पूरा करना चाहिए जीवन में। अब हम बात करेंगे, क्या ये मान्य है कि अपनी इंटरप्रिटेशन को चेंज करने के लिए अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना, और क्या ये पॉसिबल है कि हम अपनी इंटरप्रिटेशन को चेंज कर सकें, और क्या इसका चेंज करना ज़रूरी है? इसका चेंज करना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ पर काम करते हैं, जैसे कि थॉमस एडिसन का जब हम जीवन पढ़ते हैं तो उसमें यह आता है कि उन्होंने अपनी पूरी कोशिश के साथ अपना एक साइंटिफिक इन्वेंशन जिसमें वो लगे हुए थे, और लाइट बल्ब को इन्वेंट करने के लिए उन्होंने 10,000 बार फेलियर फेस किया। तो ये कैसे एक आदमी फेलियर को कैसे फेस कर सकता है इतनी बार? वो इसलिए फेस कर सकता है कि जो उन्होंने तर्क वितर्क अभी लगाया था, जो उन्होंने चीज़ों को अभी पर्सपेक्टिव से देखा था, वो उसको चेंज करने की ज़रूरत है। जब हम उस बिलीफ को चेंज कर देते हैं तो हमें नया आयाम मिलेगा, एक नया मेथड मिलेगा जिससे हम जो लगाकर हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये बहुत मशहूर कहावत है कि उन्होंने बोला कि 10,000 बार मैं फेल हुआ ये मायने नहीं रखता, लेकिन मैंने 10,000 बार ये सीखा कि ये मेरा पर्सपेक्टिव है या ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, ये गलत है, और मुझे इसको चेंज करके आगे बढ़ना है और कोई नया एक्सपेरिमेंट करना है ताकि मैं बल्ब को खोज सकूं, लाइट बल्ब को खोज सकूं। तो इसलिए हमें भी अपनी ज़िंदगी में अपने बिलीफ सिस्टम को, अपने आप को, अपने इंटरप्रिटेशन को, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने की ज़रूरत है, ताकि हम हमारी जो ट्रू आइडेंटिटी है वो बाहर निकल के आ सके, हमारी जो सबसे अच्छी काबिलियत है वो निखर कर आ सके, जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है हमारे जीवन की, हमारे व्यक्तित्व की, वो निखर कर आ सके, और मूल्यों के साथ जुड़कर वो एक नया आउटकम पैदा कर सके और हमारे जीवन में तब्दीली लाकर औरों के जीवन में भी हम तब्दीली लाने का कारण बन सकते हैं। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि अपनी इंटरप्रिटेशन को जांचना और उसको चेंज करना निहायत ही ज़रूरी है।